Good evening everyone. Previous video we have done up to 8 questions exercise 2.2 class 8. Now we will do further 8 questions from 9 to 16. Let's see about 9th question. So 9th question is the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. So I told you in previous exercise जब भी ratio में हो we'll put the variable with the number given in the ratio. So 5x and 7x. 4 years later the sum of the ages is 56. सबसे पहले हम उसकी रेशियो सॉल्व करते हैं. Okay, so here we'll write Rahul's age, let the Rahul's age equals to डाल लो, या you can write b, so it will be ratios की है 5x और after 4 years तो +4 आ जाएगा. Let the Harun's age equals to, in ratio it is 7x और after 4 years it is 4. So we know that इन दोनों का sum is 56. So we'll find their sum, that will be equals to 56. 4 4 8, 5 and 7 12x. तो यहाँ पे जो आपका 8 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा. इट बिकम्स 40 48. 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा एंड इट बिकम्स x इक्वल्स टू 4. दीज आर नॉट देयर एजेस. पुट द x वैल्यू. यहाँ पे आप लिखेंगे राहुल्स एज. हियर यू विल राइट हरनूर्स एज इक्वल्स टू 5x + 4. यहाँ पे उसका ऊपर वाला भी लिख देंगे. सो यू विल राइट फर्स्ट वैल्यू डालेंगे आप उसकी, देन यू विल राइट 24. ऐसे आपने इसका सॉल्व करना है. आई एम सेइंग व्हाई अगेन एंड अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट. ये चीज लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर वैल्यू डालोगे, फिर आंसर. नाउ इसका क्या आंसर आ जाएगा? 7 4 = 28, 28 + 3 32 और 28 + 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. सो जो ये आपकी राहुल और हरून है, these are their present ages. Now question number 10. The number of boys and the girls in the classroom are in ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total strength of the class? So let the number of boys equals to, it's in ratio 7x, so 7:5 और girls की आ जाएगी 5x. Now the number of boys is 8 more than the number of girls. So जो boys है that are more, 8 more हैं girls से. तो ये चीज बन जाएगी आपकी. ये चीज आपकी उधर चली जाएगी, -8 हो जाएगा. ये इधर आएगा -5 हो जाएगा. So 7 - 5 is 2x. Here, okay. Just wait. Here the thing is, जो आपका दिया है the number of boys is 8 more than the number of girls. जो number of boys हैं is 8 more than girls. जितनी गर्ल्स हैं उससे 8 ज्यादा है, तो गर्ल्स में 8 प्लस होगा ना. Now solve this. So x is equals to 4. Put the value of 4. लिखोगे number of boys equals to 7x, that is 28. वैल्यू भी डालोगे आप जैसे हमने इसमें किया है एंड दिस बिकम्स 20. सो इनकी टोटल है 48. नाउ the total, we have to find the total strength. So at last you will write the total number of students equals to 28 plus 20 equals to 48. Now question number 11. It's quite easy one.
but Bai Cheng's father is 26 years younger than Bai Cheng's grandfather and 29 years older than Bai Cheng. The sum of their ages of all the three is 135 years. What are their ages? So सबसे पहले हमें Bai Cheng father की will take age x. Let the Bai Cheng's father age be x. Next they have given जो उसके grandfather हैं 26 years younger हैं, so younger होता है that is plus, तो यहाँ पे सारा कुछ लिख देना है, बस यहाँ पे आ जाएगा आपका grandfather b x plus 26 because वो 26 years ज्यादा है उनसे. And next is 29 years older than Bai Cheng. और Bai Cheng से वो and age of Bai Cheng जो उनका बच्चा है, ठीक है, उसके पापा से 29 years कम है. ओके, अभी इनका जो है their sum is 135. So we'll just add all of them 135. 29 को हम पहले उधर सीधे ले जाते हैं. So इसको यहाँ इसके साथ सॉल्व कर लो. इट इज -3 माइनस, ओके आई विल सॉल्व. -3 यहाँ पे 3x, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा. 138 यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 46. दिस इज वैल्यू ऑफ फादर्स एज. तो ये फादर की है, ग्रैंडफादर की जब आप फाइंड करोगे दैट इज 46 plus 26, that is grandfather, son और फादर की है 46, ग्रैंडफादर की आ जाएगी आपकी 27, और उसके बाद आपकी सन की जो है वो आ जाएगी, इसमें माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 17. पीछे सभी के ईयर्स डालना है पूरा. ओके, ये चीज आप नीचे लिखेंगे अच्छी तरह से. ओके, 46, 72 and 17 years. Coming towards next question 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? So हमने फाइंड करनी है, जो भी चीज फाइंड करनी है उसको लेट ले लेना. तो रवि की एज फाइंड करनी है 12th क्वेश्चन में. लेट द रवि's एज बी x. अभी आगे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है. अभी उन्होंने कहा है 15 years from now. अब से 15 years आगे वो 5 टाइम हो जाएगा उसकी प्रेजेंट एज. 15 years from now उसकी जो प्रेजेंट एज है 4 टाइम्स हो जाएगी. देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन बन रही है ना. 15 years from now, 15 years from now वो आपका इक्वल हो जाएगा, will be 4 times his present age. उसकी 4 टाइम हो जाएगी present age. Now here comes, ये चीज उधर जाके माइनस हो जाएगी, so 3x equals to 15 and x will be equals to 5. So ये आपकी आ गई Ravi की years. So here you will write the Ravi's age is 5 years. For 13th question. 13th question की जगह नहीं है, so I'll erase the board. You just take the screenshots or write on your notebook side by side. Okay. As it's difficult to solve all the questions on one board. Question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get -7 by 12. So अभी हमने नंबर फाइंड करना है.
कौन सा? रैशनल. सो लेट द रैशनल नंबर बी x. सबसे पहले तो हमें उसको x मान लेना है, जो चीज हमें ढूंढनी है. अभी हम क्वेश्चन देखते हैं. जब रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है 5/2 के साथ, it is multiplied with 5/2 and add 2/3 प्रोडक्ट उसका. ओके, इसके आंसर जो आएगा ऐड करना है 2/3 के साथ. ओके, एंड उसका आंसर आता है -7/12. सो वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन. नाउ for solving the equation it becomes 5x/2. इधर ये प्लस हो रहा है, will minus that side, subtract that side. इसका आ जाएगा 12 -7 and here becomes 4, so here will be 8. 5x/2. 5x/2 is equals to -15/12. So this becomes 15/2 when I cut. टेबल 3 पे जाएगा तो -5/4 बन जाएगा. -15/12 -5/4 बन जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई 20x -10. ये चीज इधर जाएगी माइनस में, x इक्वल्स टू -30. सो योर आंसर, just wait, there is some mistake. This is 20. Okay, इसको हम क्या करेंगे? 2 है इधर, this will be multiplied that side. ये आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड पे और 5 जो आपका डिवाइड हो जाएगा इस साइड पे x. ठीक है, ये कट हो गया, ये और ये 2 पे. So your answer is -1/2 because it is a rational number, so it is written in p/q where q is not equals to 0. That we have done in first chapter. Now coming towards 14th question. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations ₹100, ₹50 and 10 respectively. The ratio of the numbers of 3 notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh rupees. How many notes each denomination does she have? So अभी सबसे पहले हम देखते हैं रेशियोज उसके हम लिखेंगे कैसे. लेट द, जो पे ये है नोट्स वैल्यू, सबसे पहले वाली आ जाएगी 2x किसके साथ है? ₹100 के साथ. नेक्स्ट है आपकी 50 की. ये आपकी 100 रुपीज की आ गई. उसके बाद ये 50 रुपीज की है. नेक्स्ट आपकी है 10 रुपीज की. So it is in ratio 2:3:5. x मल्टीप्लाई होगा बिकॉज नोट्स हम मल्टीप्लाई ही करते हैं हर चीज के साथ. ये आ जाएगा आपका 200x, दिस विल बी 150x एंड दिस विल बी 50x. ये हमने निकाल लिया उनकी वैल्यूज. तो अभी उन्होंने कहा है जब हम इनको ऐड करते हैं तो इनका आंसर जो है 4 लाख आता है. It's 4 lakh. Now x को हम सॉल्व कर देंगे. 200 and 200 400. उधर जाके जो है 400 डिवाइड हो जाएगा. 0 के साथ 0 कट. 1000. x इक्वल्स टू 1000. नाउ इसमें आप वैल्यू डाल देंगे. ठीक है, तो इसकी डाल दोगे नंबर ऑफ ₹100 नोट्स या 100 रुपीज नोट. तो ये आ जाएगा आपका, ये था 200 इंटू एक्स,
तो ये आ जाएगा आपका 20 पहले, फिर उसके बाद वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा 20,000, ठीक है, सॉरी 2 2 है, ये आ जाएगा 2 लाख। उसके बाद आपकी ₹50 की आ जाएगी, दैट इज 150x। तो 150 पे जब हम ये चीज डालेंगे तो ये आ जाएगी 1.5 लाख, दैट इज 1,50,000 फॉर ₹10। सो 10 के हमारे पास 50 है, सो 50x ये आ जाएगा। 50 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 50,000। सो दीज आर द वैल्यूज। तो इसके आपने रुपीज भी डालने हैं, मार्क्स कट हो जाते हैं, ठीक है। यूनिट्स यू हैव टू पुट, चाहे ईयर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सेंटीमीटर मीटर हो, रैशनल नंबर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is, I have a total of 300 in coins of denomination ₹1, 2 and 5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of 5 coins. The total numbers of the coin is 160. How many coins of each denomination are with me? Now, coming towards 15th question. क्वेश्चन अभी हमने फाइंड करनी है। ओके, हमें एक चीज दी हुई है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। सो अभी 5 कॉइन्स जो है, लेट द ₹5 कॉइन बी x, ठीक है। 15th क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन बी x। अभी उन्होंने यहाँ पे कहा है ₹2 का 3 टाइम्स मोर है, ठीक है, 3 टाइम्स है आपका ₹5 से। तो जो आपके नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स हैं वो आपका आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5 इज 3x। 3 टाइम्स ऑफ 5 कॉइन्स इज 3x। उसके बाद आपका जो है ₹1 नंबर ऑफ ₹1 coin B. Now here it is written in the first line, I have a total of 300 in the coin of this. The total is 160, ठीक है। So this will be 160 ये क्यों आई चीज, क्योंकि हमने जो ₹5 और ₹2 के जितने भी कॉइन है उनको ऐड कर दिया और टोटल कॉइन्स में से माइनस कर दिया, तो उतनी आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। x + 3x इज 4x, माइनस कर दिया टोटल से 160 से। सो अभी हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। सो अभी जब हम 5 की निकालेंगे, वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन ये आ जाएगी 5x, क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद जो ₹2 की है ये इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x, और 1 की तो सेम ही रहेगी क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आंसर आएगा। नाउ उन्होंने कहा इसका जो आंसर आता है ये आता है आपका 300। तो इनको सभी को प्लस कर देंगे, इसका 300 आएगा। सॉल्व दिस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 11 - 4 7x + 160 = 300। इसको इसके साथ माइनस करेंगे, सो इट इज 140 डिवाइड बाय 7, x = 20 रुपीज। इसकी आप वैल्यूज डाल देंगे। हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, सो विल पुट द वैल्यू इन दिस, ओके। तो जो ये ओके, so this will be 20, this will be 60, और इनको प्लस करेंगे 80, इसमें से माइनस करेंगे ये आ जाएगा 80, ठीक है। 80, 60, 140 एंड 1, just wait,
4 इंटू एक्स 80, 80 में से 160 माइनस करेंगे 80 और ये 60 ये 20 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th and the last question. The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who doesn't win gets a prize of 25. The total prize is distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total participants is 63. अभी हमने winner find करना है, so let the winner be X. उसके बाद हमें पार्टिसिपेंट बता दिए कितने पार्टिसिपेट किए हैं 63, तो लेट द नॉन पार्टिसिपेंट्स बी 63 माइनस एक्स। जो पार्टिसिपेंट्स थे वो 63 थे और जो नहीं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसको उसमें से विनर निकाल देंगे तो उतने रह जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टोटल मनी जो है आपको वो दी हुई है 100 दी जा रही है विनर को। सो प्राइज मनी फॉर विनर, विनर जो है x है, प्राइज मनी है उसको 100x। नेक्स्ट टोटल मनी जो है आपको अभी जो जीते जो नहीं जीतेंगे उनको 25 रुपए मिलेंगे। तो इसको हम 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मनी गिवन टू नॉन पार्टिसिपेंट्स भी 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस एक्स रुपीज डाल सकते हो साथ में अगर डालना है। नाउ विल सॉल्व दिस और इसका आंसर उन्होंने कहा ये टोटल जो प्राइजेस हैं वो 3000 के हैं, सो इक्वल्स टू 3000। तो इसको हम प्लस कर देंगे, will plus the monies okay, so when we will plus the money this is multiplied by this given is this equals to 3000. now we'll subtract this, it is 75x। उसके बाद ये जब इसमें से हो जाएगा माइनस, इट इज 1425 को डिवाइड करेंगे 75 के साथ, सो योर x विल बी 19। यू कैन फाइंड दिस। सो ये अगर 19 है 1900 हो गया, सॉरी जो विनर्स हैं आपके वो आ जाएंगे 19 क्योंकि हमने x फाइंड करनी है ना। सो यू राइट द number of winners be 19. So 19 winner थे। Okay. Now we have completed exercise 2.2. In next video we'll start 2.3. So please like, share and comment. Thank you for watching.